Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have analyzed the transmission line using Smith chart. Now today, we are going to find out location of maxima and minima using Smith chart. Correct? So using Smith chart we will going to find out location of maxima and minima. So here we have given one transmission line. So let me first read the question. A transmission line with characteristic impedance of 1 ohm is terminated with load impedance of 0.2 minus j.2 ohm, and we have to find out following three things. One is impedance at distance of lambda by 4 from the load. Second, we have to find out VSWR, that is voltage standing wave ratio. And third, we have to find out location of the first voltage minimum from the load, and we have to also find out location of current minimum from the load. So as we know, on the transmission line, at certain point the voltage is maximum, at certain point voltage is minimum. So we have to find out the location of first voltage minimum from the load, and we have to find out location of first current minimum from the load. Correct? And first current minimum means what? Current minimum means voltage maximum. Okay, as we know कि ट्रांसमिशन लाइन पे जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है वहाँ पे करंट मिनिमम होता है. करेक्ट. एंड जहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होता है वहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है. मतलब हमें दो चीज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में. लोकेशन ऑफ फर्स्ट वोल्टेज मिनिमम एंड लोकेशन ऑफ फर्स्ट वोल्टेज मैक्सिमम. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसमिशन लाइन. ओके, तो पहले मैं ट्रांसमिशन लाइन को ड्रॉ करता हूं. सो हियर एज गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव द ट्रांसमिशन लाइन, करेक्ट, विथ लोड इंपीडेंस दैट इज ZL is equal to 0.2 minus j.2 ohm, correct, and the characteristic impedance that is Z0 is equal to 1 ohm, and we have to find out impedance at lambda by 4. मतलब from the load at distance of lambda by 4 we have to find out the impedance. Okay, that is Z, impedance Z. Correct. So from the load at distance lambda by 4, let's say it is lambda by 4, this is the distance lambda by 4, we have to find out the impedance Z. So let's try to solve these problems using Smith chart. So this is our Smith chart. Okay, now as we know, whenever we are solving any problems using Smith chart, the first task is to plot load impedance, correct, and we have to plot the normalized load impedance. यहाँ पे जो हमें लोड इम्पीडेंस दिया है वो उसको मुझे पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. सो लोड इम्पीडेंस, दैट इज नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज वी ऑलवेज प्लॉट द नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस ऑन द स्मिथ चार्ट. तो व्हाट इज हाउ टू फाइंड आउट नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस? दैट इज डिवाइडिंग द लोड इम्पीडेंस बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस वी विल गेट द नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस. सो लोड इम्पीडेंस कितना है बेटा? 0.2 minus j.2 divided by characteristic impedance, that is 1. So same to same, normalized load impedance is same as the original load impedance, 0.2 minus j.2 ohm. अब ये जो हमें normalized load impedance मिला ZNL, उसको हम स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं. कैसे करते हैं वो हमें पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन. ओके, हमने 2-3 बार मतलब लास्ट 2-3 लेक्चर से हम ये देखते आए कि कैसे हम नॉर्मलाइज लोड इम्पीडेंस को स्मिथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं.
तो देखो बच्चों, यहाँ पे 0.2 माइनस जे 0.2 ओम है। कितना है? 0.2 माइनस जे 0.2 ओम। करेक्ट। मतलब ये 0.2 क्या इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस सर्कल। और 0.2 एंड माइनस जे 0.2 दैट इंडिकेट्स द रिएक्टिव सर्कल ऑफ नेगेटिव रिएक्टिव सर्कल ऑफ 0.2। करेक्ट। तो 0.2 का पहले सर्कल आइडेंटिफाई करो। तो आई थिंक दिस इज द सर्कल ऑफ 0.2। करेक्ट, ये 0.2 का सर्कल है। करेक्ट। अब माइनस जे 0.2 है, मतलब अगर पॉजिटिव रिएक्टेंस होता तो हम ये सेंटर लाइन से ऊपर के पोर्शन में उसको आइडेंटिफाई करते, लेकिन ये नेगेटिव रिएक्टेंस है, मतलब हम उसको सेंटर लाइंस के बॉटम पोर्शन में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो माइनस जे 0.2 मतलब ये हो गया, ये माइनस जे 0.2 और ये माइनस जे 0.2 एंड 0.2 जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ लोड इंपीडेंस, नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ZNL। तो ये आपका हो गया लोकेशन ZNL। लेट मी इंडिकेट इट बाय ZNL। सो बच्चों, ये आपका हो गया ZNL, दैट इज 0.2 माइनस जे 0.2, 0.2 माइनस जे 0.2 ओम। करेक्ट। तो ये आपका हो गया नॉर्मलाइज लोड इंपीडेंस ऑन द स्मिथ चार्ट। करेक्ट, ये पॉइंट है। अब क्या करेंगे, पहले हम ये जो 3 क्वेश्चन है उसमें से पहले हम VSWR प्लॉट करेंगे। वी आर गोइंग टू प्लॉट दी VSWR। तो VSWR कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? VSWR फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? VSWR सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। And from the VSWR circle we can able to find out value of VSWR. Correct? Okay? तो हम क्या करेंगे, पहले VSWR सर्कल ड्रॉ करेंगे। How to draw the VSWR सर्कल? तो टेकिंग 1 एज अ सेंटर, मतलब जो स्मिथ चार्ट का जो सेंटर है 1, उसको एज अ सेंटर लेके जो हमें लोड इंपीडेंस हमने पॉइंट किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है, उतनी रेडियस का हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। करेक्ट। एंड दिस विल बी माय VSWR सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माय VSWR सर्कल। ओके, तो ये हमारा हो गया VSWR सर्कल। करेक्ट, ये हमारा VSWR सर्कल हो गया। अब ये VSWR सर्कल जहाँ पे ये मेन लाइन को टच करता है, यहाँ पे वो आपका हो गया VSWR की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, ये 0.5 है, ये 0.5 का सर्कल है। और यहाँ पे देखो, ये आई थिंक 5 का सर्कल है, नॉट 0.5, ये 5 का सर्कल है। और 5 के जस्ट थोड़ा आगे नीचे, मतलब 5.3 के आसपास VSWR की वैल्यू हमें मिल रही है। मतलब द वैल्यू ऑफ VSWR दैट इज 5.3। मतलब जो VSWR की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, दैट इज VSWR इज इक्वल टू 5.3। सो VSWR की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 5.3। करेक्ट। सो VSWR की वैल्यू हमें मिल गई 5.3। VSWR फाइंड करने का एक दूसरा भी तरीका है, मैं आज आपको सिखाता हूँ। एक तो हो गया कि VSWR सर्कल ड्रॉ करो, और VSWR सर्कल जहाँ पे भी ये मेन एक्सिस को टच करता है, क्रॉस करता है, वो वैल्यू जो है दैट इंडिकेट दी VSWR वैल्यू। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि यहाँ पे जो हमने जो VSWR सर्कल ड्रॉ किया है, ओके, VSWR सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो VSWR सर्कल जहाँ पे ये मेन लाइन को टच करता है, वहाँ से एक लाइन, ये जो नीचे स्केल दिख रहे हैं ना आपको, उसमें से एक स्केल SWR का है, VSWR का एक स्केल है। मतलब ये जो फर्स्ट स्केल आपको दिख रहा है, लेट मी पॉइंट इट आउट, ये जो स्केल है दैट इंडिकेट द VSWR वैल्यू, SWR वैल्यू। तो ये स्केल को जहाँ पे भी वो टच करता है, हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ओके, ये मेन एक्सिस से VSWR सर्कल से, और जहाँ पे भी टच करता है दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ VSWR। और ये वैल्यू हमें मिलती है 5.3। ये 5 है, इससे जस्ट थोड़ा आगे 5.3 मिल रहा है, ये 5.3 है। करेक्ट, गुड। तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
value of VSWR, that is the 5.3. okay, and VSWR is the dimensionless quantity, मतलब उसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट नहीं है। चलो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें पूछा है, व्हाट इज इम्पीडेंस एट λ/4 फ्रॉम द लोड। ओके, मतलब ये लोड एंड से λ/4 डिस्टेंस टूवर्ड्स जनरेटर हम जाएंगे। ये कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, टूवर्ड्स जनरेटर। ये कौन सी इंडिकेट डायरेक्शन कर रहा है, टूवर्ड्स जनरेटर, टूवर्ड्स दी जनरेटर। मतलब हम लोड इंपीडेंस से टूवर्ड्स द जनरेटर λ/4 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो हमें इंपीडेंस का लोकेशन मिल जाएगा। ओके, एंड वहां से हम इंपीडेंस फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, λ/4 मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.25 लैम्डा। करेक्ट, λ/4 मतलब 0.25 लैम्डा। अब ट्राई करते हैं कि ये डिस्टेंस कहाँ पे आएगा। तो बच्चों पहले तो हमने जो आइडेंटिफाई किया है, ये जो सर्कल आइडेंटिफाई किया है, सॉरी ये जो लोड इंपीडेंस आइडेंटिफाई किया है उसका लोकेशन यहाँ पे मैं उसके लाइन एक्सटेंड करता हूँ। ओके, तो सेंटर एज अ 1, ओके, और उससे पास होती हुई एक लाइन मैं खींचूंगा, सेंटर एज अ 1 पे रखते हुए मैं एक लाइन खींचूंगा। करेक्ट, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे आती है, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द लोड, ZL, दैट विल बी द ZL। ओके, ये मेरा हो गया ZL। ओके, तो ZL मुझे समवॉट मिल रहा है 0.47 एंड 0.46 के बीच में, दैट इज आई थिंक इट इज 0.465 लैम्डा। तो ये लोकेशन हो गया 0.465 लैम्डा। तो ये कौन सा मतलब स्केल हमें रीड करना है, यहाँ पे हमें कौन सा स्केल रीड करना है, ये जो दिखा रहा है ना वेवलेंथ टूवर्ड द जनरेटर, तो वो स्केल हमें रीड करा। तो देख सकते हो ये 0.46 है, ये 0.47 है, तो मैंने ले लिया 0.465 के आसपास। ओके, इतना डिस्टेंस ले लिया, मतलब ये पॉइंट हमें मिल गया लोड का लोकेशन। ओके, ZL ऑन दी वेवलेंथ टूवर्ड द जनरेटर स्केल। तो हमने वेवलेंथ टूवर्ड द जनरेटर स्केल पे ये लोड इंपीडेंस का लोकेशन है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, दैट इज 0.465 लैम्डा। अब ये लोकेशन से हमारा जो इंपीडेंस है वो कितने डिस्टेंस पे है, λ/4। λ/4 मतलब 0.25 लैम्डा। ओके बच्चों, एक चीज़ याद करो कि हमने जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ते थे, स्मिथ चार्ट का पढ़ा था, उस टाइम मैंने मेंशन किया था कि ये जो पूरा सर्कल हम घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्मिथ चार्ट पे पूरा सर्कल घूमते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं हम, 0.5 लैम्डा। मतलब सेमी सर्कल हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.25 लैम्डा। मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट से हमें सेमी सर्कल घूमना है। हमें कितना घूमना है, सेमी सर्कल, दैट इज 0.25 लैम्डा डिस्टेंस। तो बच्चों देखो, ये पॉइंट से हम स्टार्ट करें तो ये 0.465 लैम्डा है डिस्टेंस। करेक्ट, इससे हम टूवर्ड्स द जनरेटर जाएंगे तो ये पॉइंट पे हम आ जाएंगे, वहाँ पे 0 है, अगेन हम आ गए वापस 0 पे। करेक्ट, तो ये 0 है, तो ये 0 और इतना डिस्टेंस कितना है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। करेक्ट, 0 और ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है 0.465 लैम्डा से ये डिस्टेंस है। ओके, वो डिस्टेंस प्लस आगे ये फ्रेश मतलब फिर से शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स जनरेटर। ये स्केल पूरा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा मिलेगा, 0.01, 0.02, 0.04, 0.05 एंड सो ऑन। करेक्ट, तो ये 0.465 लैम्डा जो डिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 0.5, अगेन यहाँ पे हम 0.5 पे आ जाएंगे, तो 0.5 माइनस 0.465 ये डिस्टेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले पहले। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 0.5 माइनस 0.465 लैम्डा। करेक्ट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4, 3, ओके 0.034 लैम्डा, 0.034 लैम्डा। तो मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 0.043 लैम्डा। अब हमें टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 0.25। करेक्ट, मतलब
0.034 लेमडा तो हमने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, ये पॉइंट पे आने तो हमने 0.034 डिस्टेंस तो हो गया कवर। अब 0.25 में से 0.034 माइनस करो, इतना डिस्टेंस अगेन मुझे कवर करना पड़ेगा। तो 0.25 में से मैं 0.034 लेमडा माइनस करता हूँ, इतना डिस्टेंस मुझे ये पॉइंट से अगेन ट्रैवल करना है। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये डिस्टेंस होगा 6 1, ओके 6 1, अगेन ये 1, 0.116 लेमडा जितना डिस्टेंस अगेन मैं कवर करूंगा, सॉरी 216 जितना डिस्टेंस मैं अगेन कवर करूंगा, 0.216 जितना डिस्टेंस अगेन कवर करूंगा, तो मुझे ये 0.25 लेमडा मिल जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट से अगेन मैं 0.216 लेमडा जितना डिस्टेंस कवर करूंगा। तो देख सकते हैं हम, ये 21 है, 21 एंड 22 के बीच में हमें 216 मिलेगा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका होगा 0.216 लेमडा, 0.216 लेमडा। ओके, और 0.216 लेमडा जो है वो यहाँ से जहाँ पे भी टच करता है VSWR सर्कल को, वो पॉइंट हमारा लोड इम्पीडेंस मतलब लोकेशन Z हो जाएगा। तो ये देखो, मैं यहाँ से ये डिस्टेंस मतलब ये कनेक्ट कर लेता हूँ सेंटर ऑफ दी स्मिथ चार्ट से ये लोकेशन। तो ये कहाँ जहाँ पे भी टच करता है VSWR सर्कल को, दैट विल बी माई लोकेशन ऑफ Z। दिस इज माई लोकेशन ऑफ Z। तो ये मेरा Z हो गया, दिस इज माई लोकेशन Z। ओके, और ये कितना होगा देख लेते हैं। चलो ये Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। करेक्ट, Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई थिंक ये जो रेजिस्टेंस सर्कल है वो आई थिंक 2.5 का, ये 2.5 का रेजिस्टेंस सर्कल है। सो रेजिस्टेंस सर्कल इज ऑफ 2.5 प्लस पॉजिटिव साइड ऊपर की साइड है, मतलब प्लस आएगा। रिएक्टेंस भी कितना है, तो ये 2.5 का ही है, रिएक्टेंस भी 2.5 मतलब 2.5 J ओम। तो जो Z की वैल्यू हमें मिली दैट इज impedance at lambda by 4 distance from the load, that is, so what I got, that is impedance Z at the distance of lambda by 4 from the load, that is 2.5 plus J 2.5 ohm। करेक्ट, तो ये मुझे मिला आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज इंपीडेंस एट लैम्ब्डा बाय 4। तो सिंपल है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा मतलब मैंने कैलकुलेशन किया है, वो कैलकुलेशन शायद अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इंपीडेंस जेड एट अ डिस्टेंस ऑफ लैम्ब्डा बाय 4 फ्रॉम द लोड। तो ये लोड का लोकेशन मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, दैट इज 0.465 लैम्ब्डा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से मुझे 0.25 लेमडा टूवर्ड जनरेटर घूमना है। ओके, 0.25 लेमडा टूवर्ड जनरेटर में घूमूंगा, तब जाके मुझे Z का लोकेशन मिलेगा। दिस विल बी द लोकेशन ऑफ Z। करेक्ट, तो इसके लिए बच्चों हमने क्या किया कि अगर मैं ये लोकेशन पे हूँ तो अगेन ये पॉइंट पे वापिस आऊँगा तो वो अगेन 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है, अगेन 0.5 लेमडा घूम के आप वही लोकेशन पे वापस आते तो वो 0 है। तो हमने क्या किया कि इतना लोकेशन पहले डिस्टेंस का मतलब मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये 0.465 से ये लोकेशन का डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस हमें कितना मिला था बच्चों, दैट इज 0.034। करेक्ट, 0.034 मिला था मुझे। तो ये इतना डिस्टेंस जो है वो 0.034 मिला था 4 लेमडा, और अगेन इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। अब इससे ये डिस्टेंस जो है और दूसरा अब अगेन 0.216 लेमडा डिस्टेंस कवर करेंगे ये पॉइंट से,
0.216 लेमडा डिस्टेंस कवर करेंगे ये पॉइंट से, तो टोटल ये पॉइंट से 25.25 लेमडा हो जाएगा। मतलब 0.034 प्लस 0.216 दैट इज द 20.25 लेमडा। ओके, और 0.25 लेमडा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, दैट इज अगेन ओके ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.216 लेमडा, 0.216 लेमडा, ये पॉइंट 0.216 है। और इससे हमें जो लोकेशन और जो जेड की वैल्यू मिलते हैं दैट इज 2.5 प्लस जे 2.5 ओम। अगर ये नहीं करना डायरेक्टली, अगर आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। 0.25 लेमडा का मतलब बच्चों होता है कि ये जेडएल की जो वैल्यू है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे 1 में से पास होता हुआ। मतलब यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 से पास होती हुई, 1 से पास होती हुई जो लाइन ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके यहाँ से, और जहाँ पे वो VSWR सर्कल को टच करती है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, बिकॉज 0.25 मतलब एग्जैक्टली डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट, डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, ये पॉइंट से एग्जैक्टली 1 से पास होती है एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट साइड, और ऑपोजिट साइड जहाँ पे भी वो VSWR सर्कल को टच करती है दैट विल बी माई वैल्यू ऑफ जेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया, दैट इज इम्पीडेंस एट लैम्डा बाय 4 दैट इज दी 2.5 प्लस जे 2.5 ओम। अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, तो उसके लिए फाइंड क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में हमें, ये जो हमने लोड का लोकेशन आइडेंटिफाई किया वहां से फर्स्ट वोल्टेज मिनिमम पॉइंट एंड करंट मिनिमम पॉइंट, करंट मिनिमम मतलब वोल्टेज मैक्सिमम, तो वी हैव टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ फर्स्ट Vmin that is voltage minimum and first Vmax मतलब करंट मिनिमम, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन पे जहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होता है, और जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है वहाँ पे करंट मिनिमम होता है। सो इफ आई फाइंड आउट द फर्स्ट वोल्टेज मैक्सिमम लोकेशन फ्रॉम द लोड देन इट विल बी करंट मिनिमम। तो वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट वोल्टेज मिनिमम एंड फर्स्ट वोल्टेज मैक्सिमम फ्रॉम द लोड पॉइंट। अब बच्चों ये वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ पे होता है स्मिथ चार्ट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये जो पॉइंट होता है, लेट मी आइडेंटिफाई इट विथ डिफरेंट कलर सो इट वुड बी मोर इजी विजिबल टू यू। सो ये जो पॉइंट है जीरो वाला, ये जो पॉइंट है स्मिथ चार्ट पे दैट इंडिकेट द वोल्टेज मिनिमम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज द फर्स्ट वोल्टेज मिनिमम एंड इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये जो पॉइंट है दैट इज वोल्टेज मैक्सिमम, ये Vmax है, ये Vmax है। तो ये वोल्टेज मैक्सिमम पॉइंट है और ये वोल्टेज मिनिमम पॉइंट है। तो लोड से वोल्टेज मिनिमम का पॉइंट लोकेशन एंड लोड से वोल्टेज मैक्सिमम का लोकेशन हमें आइडेंटिफाई करना है और फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, Vmin फाइंड करेंगे। तो Vmin कैसे करेंगे बच्चों, देख लो Vmin कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, Vmin क्या हो जाएगा, ये लोड का लोकेशन है, वहाँ से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से ये 0.465 लेमडा है, ये 0.465 लेमडा है, वहाँ से ये 0.5 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये 0.5 लेमडा है, ये 0.465 लेमडा है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दैट वुड बी आई थिंक, उसको मैं एल डैश बोल दूँ, एल डैश बोल दूँ इसको, तो एल डैश कितना हो जाएगा बच्चों, दैट वुड बी आई थिंक 0.034 लेमडा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ओके ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी 0.034 लेमडा। तो हमें वोल्टेज मिनिमम का लोकेशन मिल गया, दैट इज लोकेशन ऑफ वोल्टेज मिनिमम, और ये लेंथ लोकेशन को मैं एल डैश से डिनोट करूँ तो ये हो जाएगा 0.034 लेमडा। ओके वेरी सिंपल, याद रखना स्मिथ चार्ट पे ये जो लोकेशन होता है 0.00 और 0.5 लेमडा दैट विल इंडिकेट दी वोल्टेज मिनिमम, और ये जो 0.25 लेमडा का लोकेशन दैट इंडिकेट द वोल्टेज मैक्सिमम। लोड से हमें वोल्टेज मिनिमम फाइंड करना है, दैट इज 0.034, एल डैश इज इक्वल 0.034। अब लोड से मुझे वोल्टेज मैक्सिमम, लोड से वोल्टेज मैक्सिमम टूवर्ड्स द जनरेटर, तो कैसे होगा, ये डिस्टेंस तक हम पहुंच गए, तो ये इतना डिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.034 लेमडा। अब यहाँ से मुझे अगेन ये पॉइंट तक पहुंचना है वोल्टेज मैक्सिमम, तो हमें पता है कि हाफ सेमी सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 0.25 लेमडा। तो हम ये डिस्टेंस पे पहुंच जाने के बाद मिनिमम से
मैक्सिमम जाएंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो है 0.25 लेमडा, 0.25 लेमडा है, तो ये 0.25 लेमडा हो गया। और ये पॉइंट से लोड का डिस्टेंस कितना है 0.034, तो हम ये दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 0.25 लेमडा प्लस यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 0.25 लेमडा, उसमें 0.034 लेमडा ऐड कर दो, मतलब ये डिस्टेंस, तो मुझे मिल जाएगा लोकेशन ऑफ द वोल्टेज मैक्सिमा और करंट मिनिमा। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करो चलो, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा 0.284 लेमडा, करेक्ट। तो ये 0.284 लेमडा एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.284 लेमडा फ्रॉम द लोड वी आर गेटिंग द लोकेशन ऑफ वोल्टेज मैक्सिमा। सो लोकेशन ऑफ द वोल्टेज मैक्सिमा और करंट मिनिमा, लेट मी डिनोट इट करंट मिनिमा, और करंट मिनिमा इज नथिंग बट वोल्टेज मैक्सिमा, दैट इज L डबल डैश इज इक्वल टू कितना मिला में 0.284 लेमडा, 0.284 लेमडा, करेक्ट। तो मिनिमा एंड मैक्सिमा का लोकेशन फाइंड करना एकदम ईजी है। पहले हमें स्मिथ चार्ट पे कहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमा होता है, कहाँ पे वोल्टेज मिनिमा होता है, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करना है। ओके, वंस वी आइडेंटिफाई दैट लोकेशन, इट्स इजी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस of the voltage minima and voltage maximum from the load end. Okay, so हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर फाइंड किए फॉर गिवन ट्रांसमिशन लाइन। फर्स्ट इज द VSWR, वेरी सिंपल। वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द इम्पीडेंस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.25 लेमडा और लेमडा बाय 4 फ्रॉम द लोड इम्पीडेंस और लोड, एंड वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट वोल्टेज मिनिमा and first current minimum or voltage maximum from the load end. So I hope कि आज जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We will discuss other aspect of this Smith chart in our next video lecture. Thank you very much.